स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार. Hi aspirants, my name is Divakar Bothra. At Study IQ, we would be starting our first Sociology Foundation batch from 18th of October. The timings would be 1 p.m. to 4 p.m. The fees of the course is 18,999, and if you use the code given in front of your screen, that is DivLive, the charges would be 12,500. But the point is this, many organizations are also starting their course. सबके कोर्स है, आप ही का कोर्स क्यों लेना है सर? As simple as that. This short video of 5 to 10 minutes would largely be explaining to you how we are technically different and how at least the major weakness which is largely present in your preparation would be tackled with us in not only merely tackled, would be tackled qualitatively. As far as my background is concerned, I have given 4 civil services interviews and have largely completed my double masters, double graduations. As far as my civil services journey is concerned, 4 interviews, and as far as my teaching experience is concerned, I started teaching from 2014 till 2000, and as of now, the journey is continuing. First, I taught with Mrunal at PDPU, then I started teaching at Vajinam and Ravi with their respective faculties as far as sociology is concerned. I have the certificates starting from feminism, Marxism, Wall Street, economics, climate change, COVID, pandemics, etc. So one advantage, I have a background of law, I have a background of commerce, I have a background of sociology, I have a background of public administrations, coupled with the various certificates which I have already mentioned. In such circumstances, you would definitely reap the benefits of having a diversified understanding. Sociology being a discipline as far as society is concerned, and in society the things are interconnected. चीजें connect होती है एक दूसरे के साथ. तो technically आपको शायद ये सारे interconnections में मेरे को लगता है because of my backgrounds and my experience, I'll be in a position to explain you better. But these said, one important thing which differentiates us from the other courses is our emphasis on writing skills. How we are different. Answer writing पे लोग focus करते हैं, but we are not going to focus on answer writing. I bet on it. We are only going to focus on effective answer writing. दोनों में डिफरेंस क्या होता है? What is the difference between effective answer writing and answer writing? Answer writing वो होती है कि आप जाके टेस्ट लिखते हो, आपने आंसर्स लिखे, मार्क्स अच्छे आए, खराब आए, आप फिर सेकंड टेस्ट में मूव ऑन करते हो, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इफेक्टिव आंसर राइटिंग वो होती है जहां पे हम एम्फसाइज करेंगे कि हर क्वेश्चन को पहले ब्रेक डाउन कैसे किया जाता है, उसकी एसेंस कैसे समझी जाती है, उसकी डिमांड कैसे समझी जाती है. वंस यू अंडरस्टैंड दैट, पहले ब्रेनस्टॉर्म कैसे किया जाता है उस क्वेश्चन को, फिर स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है और फिर आंसर लिखा जाता है. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग इफेक्टिव आंसर्स. और इफेक्टिव आंसर राइटिंग का एक बेनिफिट ये होता है कि टेक्निकली एक बार जो आपने आंसर लिख लिया, फॉर एग्जांपल मैंने कार्ल मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे एक आंसर लिखा है, तो अगर इफेक्टिव तरीके से आपने लिखा है, जो प्रोसेस मैंने हाईलाइट किया है, जिसको हम डिटेल में ड्वेल करेंगे इन द क्लासेस एज वेल, उसके बाद में शायद वो सेम आंसर आप रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी में रहोगे. लेकिन आंसर राइटिंग में ये होता है कि आज आपने बहुत अच्छा मार्क्स आया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में, 5 दिन के बाद सेम क्वेश्चन आपको दिया गया, तो हो सकता है उससे भी एक्सीलेंट आए और हो सकता है उससे भी पैथेटिक मार्क्स आए. ऐसी आंसर राइटिंग का क्या फायदा? जो यहां पे अच्छे या खराब दे सकती है, वहां जाके कोई श्योरिटी नहीं है. तो टेक्निकली आंसर राइटिंग वो करो जिसमें आपके पास ये कैपेसिटीज आ जाए कि एक बार जो लिखा है इतने सहज के समझ के लिखा है कि आगे जाके वो सेम आंसर्स मैं रिप्रोड्यूस नियर अबाउट करने की कैपेसिटी में रखता हूं. और वो तब पॉसिबल है जब आंसर राइटिंग को कंबाइन किया जाता है कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रक्चर्स प्लस एनालिसिस. ये तीनों चीजों के थ्रू वी विल राइट एन आंसर्स. एंड सेकेंडली, जो आंसर राइटिंग होगी वो डेली प्रैक्टिस रहेगी क्लास के अंदर. पहले 15 से 20 मिनट हम डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जहां पे मैं प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस उठाऊंगा और उनको टेक्निकली जो टॉपिक चल रहा है, मान लेते हैं कि अभी कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी चल रहा है, तो कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी जैसे ही टॉपिक खत्म किया, मैंने एक क्वेश्चन उठाया ताकि आपको समझ में आए कि जो कंटेंट हमने पढ़ा है उसको यूज कैसे करना है. तब जाके इफेक्टिव आंसर राइटिंग आती है. और वो हर
डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अच्छा ये कॉमन सेंस है, अच्छा ये लिख लेना, ये लिख लेना, ये लिख लेना, ये घास काटने वाले काम नहीं होने वाले हैं फॉर श्योर। दोज पीपल हु आर सीरियस प्लीज ज्वाइन, दोज पीपल हु आर टेक्निकली नॉट सीरियस आई डोंट थिंक दिस वुड बी योर कप ऑफ टी। सो टेक्निकली एक चीज बताऊं तो प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे और डेली बेसिस पे वो 15 से 20 मिनट हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सर किस तरीके का होगा, बोल रहे हो शायद हमें उसकी कुछ आंसर स्टैंडर्ड आंसर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो आपको जो स्टैंडर्ड आंसर्स मिलेंगे वो कुछ इस फॉर्मेट में होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, डू यू थिंक एथनोमेथोलॉजी हेल्प्स यू इन गेटिंग द रिलायबल एंड वैलिड डेटा। अब इसमें क्या किया, डेली इसी बेसिस पे आपके साथ आंसर्स डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को पहले ब्रेक करूंगा और उसके बाद में उसका एक इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन के बाद में आपको उसकी बॉडी समझाई जाएगी, जैसे ये स्टैंडर्ड आंसर्स है, और बॉडी के बाद में एक कंक्लूजन भी बताया जाएगा कि शायद इसके अंदर एक बेहतर कंक्लूजन क्या हो सकता था। और ये सारी की सारी पीपीटीज आपको मिलेगी। ऑल द पीपीटीज एंड पीडीएफ्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। जितने स्टैंडर्ड आंसर्स होंगे सारी की सारी स्टैंडर्ड आंसर्स की पीपीटी भी आपको मिलेगी। तो टेक्निकली बैच के साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग इफेक्टिव आंसर राइटिंग में कन्वर्ट होती जाएगी। और इनको एनालिसिस करने का तरीका है, सोशियोलॉजिकली कैसा लिखा गया, कैसे चीजों को हमने टेक केयर किया है, ऑल दीज वुड बी डिस्कस्ड। सो answer writing is one thing which completely differentiates us, and furthermore the discussion here would not be by mentors as such. I would be personally every day discuss these answers, take your doubts, then start the class. So the batch is starting, और ये एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे आंसर्स है, जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं। ऑल दीज आंसर्स ये आपको मिलेंगे, और ये सारे के सारे पीपीटीज ही नहीं मिलेंगे, आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कराई जाएगी। सो द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th। आफ्टर दिस वी आर नॉट प्रीटी मच श्योर हाउ वुड बी प्रोग्रेसिंग विद द सेकंड बैच। सो इफ यू आर पीपल इंटरेस्टेड इन sociology and developing a grip of your sociology in next 5 months, including your writing skills, analysis, content, material, and a conceptual understanding, you are most welcome. The code DIVLIVE could be used in order to largely take down the amount of fees from 18,999 to 12,500. The classes would be from 1 to 4 p.m. I'll see you on 18th. Best of luck. Happy studying. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।